Hello, good morning. Am I audible? Yes, sir. Good morning, sir. You're audible. Morning, sir. Audible. Okay, very good morning and welcome to today's session. Uh, Today I'm going to give you a small presentation about my practical courses, and then we'll have some practicals and then we'll have some discussion. Okay. Uh, my presentation is visible. Hello. Yes, you're visible. Yes, it is visible. This is visible. Okay. Uh, in induction, I have explained you about the course that is of 16 credits, having three practicals and three theory papers, which I have explained in detail. And today I am just going to give you a brief about the practical courses. Is it visible, this OTHL 002? I hope. Hello? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Visible. Okay. The first course is OTHL 002. This is the course code. Course code is OTHL 002. The course title is Voice and Speech. Okay. So in voice and speech, what we are going to do is start with, we'll be doing some breathing exercises, which are the most important exercises for any actor to develop the breathing capacities. Because an actor on stage, I'm talking about the theater. I'm not talking about film and television, which is having some technical inputs which can enhance your voice, or it can reduce, or it can change its frequency, volume, pitch, and whatever. But a actor on stage, what happens is requires more breathing capacity to deliver his or her lines, because a person is not static on the stage. He or she will be moving from one part of the stage to the other part while delivering the line, which requires more energy, more breathing capacities. For that to develop, we require to do some exercises. We'll be doing some exercises, which I am going to explain. We'll start with doing some Omkar and then do some kind of pranayama and some kind of different exercises where it will enhance our breathing capacities. That is one area. And the next area is the exercises for voice projection. You need to project your voice because on stage, you know, there is a distance between the audience and as well as the performers. So to reach the performer, reach the audience, we require to project our voice without affecting the lines or its mood. Okay. And then pronunciation of vowels, consonants, and difficult words. We'll be doing some exercises. Why a good pronunciation is needed for an actor? Because actor is mainly works as a communicator of the thoughts of the playwright to the audience. हम जब बोलते हैं तो उसमें कुछ क्वालिटीज चाहिए. जैसे फर्स्ट इज audibility. First quality should be audibility, because your voice should be audible to the audience. That is the first requirement, or the requisite of an actor is your voice should be audible. सुनने में आना चाहिए पहले कि what you are actually speaking of. And the next comes understandability. What is audibility and then understandability? Understandability, you know, आप जो बोल रहे हैं वो समझ में आना चाहिए कि आप वॉइस तो सुने आ रहा है, बट व्हाट यू आर स्पीकिंग may not be understood by the audience. ये अंडरस्टैंडिंग कैसे आती है कि when you pronounce the vowels, pronounce the lines, pronounce the difficult words as they are supposed to be, है ना? That we call it as a diction. डिक्शन का मतलब स्पष्टोच्चारण. जिस वर्ड्स को जिस तरीके से बोलना है उसे हम कहते हैं डिक्शन. So वो हम थोड़ा सीखेंगे. And then we'll have some tongue twisters, difficult stanzas, and chand. Chand का मतलब which is related with a rhythmatic kind of a rendering, which comes in the vyakaran, you know, the grammar of the language. Exercise for voice modulation, which helps us to increase the pitch, volume, and inflection. Then we'll be doing some news reading kind of an exercises,
addressing the large number of audiences, doing some announcements and all that. And then we go for some prose reading of different moods and diction. Mood, one speech is satirical, one piece is tragic, one piece is comedy, and one piece is realistic, one is classical, one is folk, and all that kinds of different moods which created by the author using his techniques and writing the prose. We'll be trying to do something and reading some scenes from various dramas, from it may be Indian classical or Western classical, or to the modern, or of your own region also. And last but not least, we'll be preparing poetry recitations. It is most important thing is at least we will do some 5 poems. 5 poems को हम रेंडर करने की कोशिश करेंगे, और उसमें क्या टेक्निक होनी चाहिए, वो कैसे रीड करना चाहिए, ये हम देखेंगे. ठीक है. This is all about the voice and speech exercises of your course. And next is the this is visible now, OTHL 003, which we call it as a physical aspects of acting. Bodily जो performance होती है उसको हम physical aspects कहते हैं. तो elementary knowledge of mime and movement. Mime is acting out or doing some kind of an activity without using any lines. कुछ बोले बगैर कुछ actions करना, उसको हम माइम कहते हैं. और मूवमेंट bodily movement using music or without music also. Demonstrating a character through mime and movement technique. एक कोई पात्र को हम दिखाना है तो माइम और मूवमेंट के द्वारा कैसे दिखाया जा सकता है, उसके बारे में हम सोचेंगे. और थोड़ा बेसिक योगा एक्सरसाइजेस वगैरह करेंगे. एंड फिजिकल एक्सरसाइजेस, फिजिकल मूवमेंट करेंगे, कुछ म्यूजिक के साथ, कुछ बगैर म्यूजिक के भी. Or rhythmatic body movement, which is rudimentary kind of a movement which we'll do, because whatever we'll be doing online. Online इतना हम possibilities नहीं होते हैं कि जितना हमारा 1-to-1 class में होता है. Different body movements of animates and inanimate. Animate is something that the object which can move. Inanimate is like which cannot move. Okay. एनिमेट एंड इनएनिमेट, जिसमें क्या होता है कि आप मूवमेंट के द्वारा क्या कर सकते हैं, विथ म्यूजिक या विदाउट म्यूजिक. और जो चीज मूव करती है, जैसे एनिमल है, जैसे कोई और भी चीज है, जैसे कोई पक्षी है वो मूव करती है, उसको हम रिसोर्स बना के कैसे मूवमेंट करें. या फिर दूसरी बात यह है कि आप इनएनिमेट जो मूव नहीं कर सकती, जैसे टेबल है, चेयर है, या फिर कोई ड्राइंग दिख रहा है आपको, वो ही विच कैनॉट मूव, बट इट कैन गिव यू द रिसोर्स. इट कैन give some resource to create some kind of movement. How it is going to be, we'll be dealing it. Okay. And facial mobility expression through imagination and concentration. See, imagination, moha chakti, matlab how to imagine the things, how to concentrate. In real life, we have imagined thousands of things and all that. Every day, every time, our mind goes on imagining certain things, and we expect many things which also come under imagination and all that, concentration. But when it comes to theater, how it goes, how it differs from the other kind of an imagination, or what is the resource for imagination, what is the resource for concentration, we are going to study here and do some kind of an exercises. And different types of body language in relation to the various compositions. Compositions in the sense that if a group of people are given to me, I can compose these people, or using these people, or using some property and people, we can have some kind of a different kinds of a compositions. For example, if you have mobile in your hand, and your body can be composed in a different way to convey different kinds of meanings. So these things we'll be doing it. And then last but not least, this is OTHL 004, the number I haven't given, but it is called method acting, which is proposed by Stanislavski. Okay. Just a moment. Okay. And in this, what happens is we will be doing some sensory exercises, which we call it as a sense memory exercises, and emotional experience, which we call it as a emotional memory exercises. Actor, when he or she is placed in different kinds of situations. What are those situations? We'll be dealing later. And exercises of observation,
concentration, relaxation, and imagination. These are the more 1, 2, 3, 4 main pillars of the Stanislavski method, which will be dealing differently. And then after these exercises, we'll be doing some improvisations with a given condition or without any proper planning. There are many types of improvisations which we can talk about, like simple improvisation, group improvisation, guided improvisation, and these three are basics you can do. How can we go about these exercises online? We need to try. And then actors imagination in different, using the different resources like birds, animals, insects, and with some kind of a storytelling also we can create some improvisations. How we are going to do, I'll tell you. Exercises for energy flow of imagination, handling the different properties. You see, handling is most important in theater, because in many times you may not be given a real property to deal with, है ना. रियल गन नहीं है, रियल चाय नहीं है, रियल बुक नहीं है, nothing is real on stage. But when you use these properties, you have to justify that you are using the original material. So उसके लिए हमें क्या करना है, उस तरह का हम क्वेश्चंस और आंसर्स को हम फाइंड आउट करेंगे using the, and how to handle the properties. Handling of factors is a different issue, and handling the properties also one of the major aspects of acting training. Okay, this is all about the three papers which we are going to deal in the name of practicals. So now I am stopping my presentation. Okay. Okay, if you have any questions regarding this, you can ask, otherwise we'll proceed. Any questions? Yeah, anyone? Yeah, Mohit, no question. Okay, if you do not have any questions, so अगर क्वेश्चन नहीं है तो दो चीजों की हमें इनपुट मिलता है. एक तो समझ में नहीं आया, दूसरा एक समझ आ गया. दो चीजें है ना. कहाँ से आवाज आ रहा है? शहानी, शहानी आपका माइक्रोफोन म्यूट कीजिए प्लीज. तो पहला कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को. एक तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया. आफ्टर दिस क्लास आई विल बी शेयरिंग दिस लिंक, यूट्यूब लिंक विथ यू. एंड दूसरी बात यह है, फर्स्ट एक्सरसाइज इज to breathe in, breathe out. This is the first exercise which we'll be going to do. How we are going to do is breathe in, breathe out. तो सभी करते हैं ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना. तो ये तो हमें जिंदगी का एक हिस्सा है जो which will happen instantaneously. बॉडी का जो धर्म है वो ये है कि आप ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते ही हैं. मगर हम इस एक्सरसाइज को पर्पसफुली जब करते हैं तो उसका अलग होता है ना. Try to do breathe in, breathe out, and concentrate on how breath is going inside, and breathe out when you breathe out, how the breath is going out. This is the exercise, है ना. सिंपल एक्सरसाइज है, सांस अंदर लेना और छोड़ना, और ये बॉडी के अंदर कैसे जा रहा है, कैसे बाहर आ रहा है, इसी के ऊपर ध्यान दीजिए. इसी को हम बोलते भी हैं कि मेडिटेशन में क्या होता है, श्वास पे ध्यान देना, है ना. When you concentrate on your inside breathing, breathe out, that itself gives you some kind of relief, some kind of solace to your soul. उसमें हम उसको breathe in, breathe out, breathe in, breathe out ये एक्सरसाइज स्लोली करेंगे. लेकिन जैसे प्राणायाम में होता है ना, वो ऐसा नहीं करते. स्लोली वी विल ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. इस तरह का एक्सरसाइज एक 5 मिनट तक करेंगे. दैट विल बी द एक्सरसाइज नंबर 1. एंड देन द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज प्रोनाउंसिएशन ऑफ आ. आ तो सभी प्रोनाउंस कर सकते हैं ना. आ से अम्मा, आ से आम. तो आ, व्हेन यू ब्रीथ इन एंड से
कंटिन्यूअसली। इसका मतलब एक ब्रीथ में कितना दूर तक, कितना देर तक, सॉरी, कितना देर तक हम इसको आ को प्रोनाउंस कर सकते हैं, उतना हम प्रोनाउंस करेंगे। दिस इज द वन एक्सरसाइज। ओके, दिस वी कॉल इट, वी विल डू इट इन ए बेस लेवल आ। बेस लेवल आ पे हम जितना नीचे हमारा आ हम बोल सकते हैं, रूल इज सेम कि ब्रीथ इन ब्रीथ आउट में आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोनाउंस दिस आ, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड देन वी कंटिन्यूअसली से। ये हो सकता है कि 5 बार करें या 10 बार करें, आप अपनी सुविधा से। एंड एक मैं बोलना चाहूंगा कि डोंट स्ट्रेस योर कैपेसिटीज, डोंट स्ट्रेच योर कैपेसिटीज, मतलब जितना आपका कैपेसिटी ब्रीथिंग का है, पहले समझ लो आपके 20 सेकंड का कैपेसिटी है या 10 सेकंड का है या फिर सिर्फ 5 सेकंड का ही है, उतना ही पहले से शुरुआत कीजिएगा, और बाद में थोड़ा थोड़ा अपना ब्रीथ हम इंक्रीज करते जाएंगे। ब्रीथिंग कैपेसिटी जैसे इंक्रीज करते जाएंगे, ब्रीथ जितना हमारे बॉडी में होगा, एक सांस में कितना हम भर सकते हैं हवा, उतनी देर तक हम बात कर सकते हैं। ये तो साइंटिफिक रूल है। जैसे ब्रीथ खत्म हो जाएगा, अगेन यू ब्रीथ इन एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग। नाउ आई एम स्पीकिंग मींस दिस मच ब्रीथ आई हैव एंड देन आई एम गोइंग टू स्पीक। मेरा ब्रीथ खत्म हो जाएगा, देन आई हैव टू टेक अगेन ब्रीथ इन एंड देन आई हैव टू स्पीक। सो ब्रीथ इन को हम पहले इंक्रीज करना चाहेंगे, ब्रीथिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहेंगे, जो पहला मैंने बोला था ना, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, उस एक्सरसाइज से होगा। एंड दूसरा एक्सरसाइज होगा प्रोनाउंसिंग द आ एट द मिडिल टोन। जैसे हम बातचीत करते हैं, बातचीत करने में एक वॉल्यूम अलग होता है, आप कोई कम वॉल्यूम में बात कर रहे हैं, वो तो आपका बेस वॉइस हो गया। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं तो ये मेरा मिडिल लेवल का वॉइस है, उसमें हम बात करेंगे ब्रीथ इन एंड से आ, इसमें ये रूल है कि आप कहीं जर्क नहीं आएगा। जर्क मतलब कोई गा रहा है ये नहीं, स्ट्रेट लाइन। जैसे अगर आप कोई एक स्ट्रेट लाइन आ से खींचना चाहेंगे तो वो लाइन कैसे होगा, इसी तरह से ब्रीथ इन एंड से आ, कंटिन्यूस, इस तरह का एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज था तो लो बेस में, लो लेवल में हम बोलेंगे आ, दूसरा हम मिडिल टोन में बोलेंगे, एंड तीसरा है टॉप में। टॉप का मतलब जैसे आप किसी ऊंची आवाज में अगर बोलेंगे तो उस स्थिति में आप आ को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, उस तरह से आप ट्राई करेंगे। जैसे ब्रीथ इन एंड से आ, तो इसका मतलब ये हुआ कि रूल ये है कि जर्क नहीं आना चाहिए कहीं पे भी, इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। तो मैंने आपको अभी 3 एक्सरसाइज बताए, एक तो 4 बल्कि, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ये कुछ देर तक करेंगे हम। दूसरी बार हम आ को प्रोनाउंस करेंगे वेरी बेसिक लेवल पे, देन हम जो बातचीत की आवाज है उसमें करेंगे, और तीसरा टॉप में ले जाएंगे वॉइस को। और अल्टीमेट एक्सरसाइज इसमें और एक वेरिएशन ये है कि यू विल स्टार्ट विथ बेसिक आ एंड देन गो टू मिडिल एंड देन गो टू टॉप। मतलब मतलब एक सायरन की तरह, सायरन जैसे शुरू होता है तो लो वॉइस में शुरू होता है, फिर बीच में जाता है और फिर बाद में टॉप में चला जाता है। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे एक 5 बार प्रैक्टिस करेंगे। और लास्ट एंड फाइनल आज के लिए टॉप से शुरू करेंगे, मिडिल में आएंगे, फिर लो में चले जाएंगे। जैसे आ, नीचे स्वर में आएंगे, मतलब टॉप आ से शुरू करके मिडिल में आएंगे, फिर नीचे चले जाएंगे। These are the basic exercises which we are going to do. Yeah, come back. So these are the some of the exercises which you are supposed to do, and then ये तो वॉइस एंड स्पीच के लिए मैंने बोला। और एक एक्सरसाइज हम फेशियल एक्सप्रेशन के लिए कहेंगे। What you will do, you will have everyone is having some smartphones today. Everybody is having a mobile. It is the most essential part of our life now. Body part हो गया एक तरह से।
तो हम इसको क्या करेंगे, एक सेल्फी लेंगे, है ना। इसमें सेल्फी का यही है कि कैमरा ऑन करके you will try to take some 5 to 6 selfies, uh, changing your facial expressions, different kinds of facial expressions. And इसमें रूल ये है कि फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ किस कॉन्टेक्स्ट में इस तरह का फेशियल एक्सप्रेशन आ रहा है, मतलब इस फेस का एक्सप्रेशन का क्या मीनिंग हो सकता है, आप तय करेंगे, मैं नहीं तय करूंगा। आप ही किस हालत में सेल्फी खींची गई है, मतलब यू आर हैप्पी, यू आर टीजिंग समवन, और यू आर अपसेट, और यू वांट टू, you are getting bored or lazy, or you have become some cunning, or you are jealous of someone, I don't know। तो उस तरह का एक्सप्रेशंस आप एक 5 एक्सप्रेशंस को आप उसको खींचेंगे, और ये जो एक्सप्रेशंस है इसको हम मेल करेंगे। कहाँ करेंगे? CPATHA@, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, CPATHA@igno.ac.in, ये मेरा मेल आईडी है जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम का। आप इन चीजों को हमें मेल करेंगे ताकि हम देखेंगे और उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। और आई एम ऑल्सो गोइंग टू फॉरवर्ड यू ए स्मॉल स्पीच एक मैं आपको देता हूँ, 2 लाइन का ही स्पीच है, तो उस स्पीच को हम प्रैक्टिस करेंगे। और इस स्पीच को ऐसा करना है कि डिफरेंट मूड्स में अगर हम करेंगे, तो एक तो लॉफिंग हो गया, है ना, एक तो ट्रेजेडी सपोज है, एंड यू आर थ्रेटनिंग समवन, है, थ्रेटनिंग हो गया, एंड जोवियल, ओके, जोवियल हो गया। और इस तरह का अगर आप और भी कुछ आप डिसाइड करना चाहेंगे तो इज समथिंग रोमांटिक, इंक्वायरी भी है, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप किसी को, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक ही लाइंस तो वही है, 2 लाइंस का मैं दूंगा अभी स्पीच आपको फॉरवर्ड करेगा, ग्रुप में हो जाएगा। तो 3 चीजों को आप, लॉफिंग, ट्रेजेडी, थ्रेटनिंग, जोवियल है आप, योर रोमांटिक, इंक्वायरी, इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन कर रहे हैं, एंड योर अफ्राइड, डरे हुए हैं, तो आप कैसे बात करेंगे, यही लाइंस। और रूल ये है कि आप इस लाइंस में कोई भी चीज चेंज नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, मतलब यू आर नॉट गोइंग टू एडिट एनी वर्ड्स और एनीथिंग, or you are going to add anything for that, okay, this is the rule which I am going to tell you। so ये कुछ एक्सरसाइज वॉइस एंड स्पीच के आज हमने बात की है, और कुछ स्पीच के बारे में हमने बात की है, और एक एक्सरसाइज ऑब्जर्वेशन में आज मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। ऑब्जर्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एन एक्टर। हाउ observation is a very big subject. In next class I am going to deal what is the exact observation required for an actor, एक्टर को ऑब्जर्वेशन की क्यों जरूरत है, और हम ऑब्जर्वेशन कैसे करना चाहिए। ऑब्जर्व करना क्या मतलब, बहुत इजी है ना, आप किसी चीज को देख लिया, ऑब्जर्व हो गया, नो, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन ऑब्जर्वेशन को हम करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा एक्सरसाइज आप करेंगे, यू विल सी कि 0 to 5 या फिर 50 to 70, इस एज ग्रुप के लोगों को आप ऑब्जर्व करेंगे अपने आसपास में, ठीक है ना। 0 to 5, 50 to 70, ये एज ग्रुप में देयर कैन बी आइदर फीमेल और मेल, उसमें कोई जेंडर बायस्ड नहीं है, किसी को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। उनका जो बॉडी मूवमेंट है उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसको आप अपने बॉडी में अगर हम उसकी कोशिश करेंगे, अगर सपोज हमने 0 to 5 का बच्चे को या बच्ची को देखा, वो उनकी बॉडी के मूवमेंट अगर हम हो उस एज ग्रुप में चले जाते हैं, उन बॉडी मूवमेंट को रिप्लिका करते हैं, अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं, तो कैसे होगा, उसकी एक छोटी सी रिकॉर्डिंग, कैमरास है ना सबके पास मोबाइल में, उसे रिकॉर्ड करके मुझे भेजना है। और 50 to 70 का भी यही चक्कर है, उनको आप देख, अब ये मत बताइए कि सर मेरे आसपास 0 और 5 का कोई भी छोटा बच्चा नहीं है, या फिर 50 से 70 के बीच में कोई ऐसा बूढ़ा या बूढ़ी नहीं है, ऐसा मत बोलिएगा। डोंट गिव मी एक्सक्यूजेस, बिकॉज आई नो मैं ऐसे कुछ एक्सरसाइज देने से तुरंत बोल देते कि सर हमारे आसपास या हमारे घर में, हमारे कॉलोनी में या फिर हमारे देश में ऐसा कोई बंदा नहीं है 0 to 5 और 50 to 70।
नो नो, यू हैव टू फाइंड आउट। अगर आपके घर में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपके अपार्टमेंट्स में देखो, अपनी सोसाइटी में देखो, अगर नहीं है तो अपने आसपास में कॉलोनी में देखो, मिल जाएंगे। तो और इसमें कोई डायलॉग बाजी नहीं होगी। व्हेन यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस, उसमें कोई फिर अपना अपना क्रिएशन मत करना। जस्ट ट्राई टू गेट देयर बॉडी लैंग्वेज इनटू योर बॉडी, दैट्स ऑल। दैट इज द मेजर basic observation exercises which I want from you. Okay, this is all for today for the exercises which I am talking about. And अगर इसमें कोई आपको डाउट है अभी जो मैं बताया, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। दिस विल बी अ फीडबैक एंड ऑल्सो फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन। तो देन विल कॉल इट ए डे। अगर कोई क्वेश्चन है तो एनीबॉडी कैन आस्क। And your videos and audios can be sent to this email ID. और चाय लेके करना। और आपके ऑडियोस और वीडियोस मुझे नेक्स्ट सैटरडे तक मिलना चाहिए, कमिंग अप सैटरडे। सो बिकॉज विल बी संडे विल बी हैविंग सम काइंड ऑफ एनालाइजेशन। हेलो, हाँ आ जाओ राह वाले। Hello, या टेल मी। hello, hello. Can you send the speech that we have to enact in different emotions? आई टोल्ड यू ना, अभी मैं ग्रुप में फॉरवर्ड करूंगा क्लास होने के बाद भाई। Thank you, जस्ट thank वेट। you, या thank you, thank you. या एनी क्वेश्चंस बॉस? सर, हाँ जो एज ग्रुप का आपने बोला ना बॉडी लैंग्वेज शो करने के लिए, तो हाँ, उसमें क्या मतलब एक ही वीडियो मतलब सेंड करूं? दो करो ना। दो ओके एक्सरसाइजेस है, एक तो 0 to 5 है और एक 50 to 70। ओके सर। दो सर एक्सरसाइज हो जाएगा। मतलब जो बॉडी लैंग्वेज मुझे दिख रहा है वो हाँ मेरे में रिजॉल्व करके वो एक्सप्रेस करना है, वही तो? बिल्कुल 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 बिल्कुल। सपोज यू आर 0 to 5, देन ओके सर। यू ऑब्जर्व द पर्सन और चाइल्ड, वो एक्टिविटीज आपके बॉडी में आनी चाहिए, जैसे सिमिलर टू 50 to 70 भी, है ना? ओके सर। यही करना है। दिस इज अ बेसिक ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज विच आई एम प्रपोजिंग नाउ। या ओके, थैंक यू सर। यस यस। और अभी ये जो डायलॉग मैं दूंगा, नेक्स्ट सेशन में हम उसको सबके सामने प्रेजेंट करेंगे। उसके ऑडियंस मत भेजिएगा मुझे। तो व्हेन वी हैव ए काउंसलिंग सेशन, वी विल बी आस्क आई विल बी आस्किंग यू टू पीपल टू ओपन योर कैमरास एंड वो लाइंस को आप बोलेंगे सबके सामने। तो एक वो मिलेगा ना कि प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम उस चीज को बात करेंगे। ठीक है, वीडियोस भेज दो मुझे, और जो फोटोग्राफ्स की मैंने बात की है, सेल्फीज की, वो मुझे मेल कर देना। जहां तक ये ऑडियो की बात है, उस ऑडियो को हम नेक्स्ट काउंसलिंग क्लास में सबके सामने उसको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना? समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? Okay, sir. ओके Okay. ओके, दैट वुड बी मोर आइडियलिस्टिक वे टू डू। क्योंकि आप भेजेंगे, मैं अकेले देखूंगा, ये ऐसा नहीं होगा। सब सुनेंगे तो सबका एक ओपिनियन भी हमें मिल जाएगा, पीर एनालिसिस भी हो जाएगा। ठीक है ना? ओके। यस सर। या यस सर। या एनी अदर क्वेश्चंस? एनीवन जॉइंड न्यू? अभी जो पिछला क्लास में नहीं आया, अभी ये यही क्लास में आ रहा है, ऐसा कोई है? ओके ओके गाइस, इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, सी यू नेक्स्ट वीक। ओके, और इन बिटवीन कभी भी होगा तो मैं कभी भी दूंगा तो 1 day एडवांस में आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है ना? ओके ओके गाइस, थैंक यू। थैंक Okay, यू sir. फॉर। Thank you. ओके, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। या थैंक यू सर। राइट।